A partial ordered set, which is a set where partial ordering is defined, and partial ordering has three properties: reflexivity, antisymmetry, and transitivity. Then we had defined the comparability. When two elements have the relation either A is less than equals to B or B is less than equals to A, then they are comparable, and we defined a chain, right? Then upper bound and maximal bound. These were used to define state the Zorn's lemma, and Zorn's lemma stated that if we have an empty set M and that is partially ordered, and if every chain has an upper bound, then M has an at least one element, maximal element, right? So using this, we had defined two applications. One was for Hamel basis and next was for orthonormal set. Now we are defining Hahn-Banach theorem. Hahn-Banach theorem says that what is actually Hahn-Banach theorem? What it states is it is an extension theorem. जैसे we had done in linear operators case, right? Bounded extension theorem. Similarly, we have the extension theorem for functionals, and for the linear functionals, it says that if we consider a bounded linear functional f on a subspace, right? On a subspace, we have a bounded linear functional f, then we can extend this functional to the entire space, right? In such a way that the basic properties जो है that holds, right? So Hahn-Banach theorem क्या करती है, एक subspace से पूरे space के ऊपर functional को extend करती है such that जो properties है, basic properties है functional की, वो hold करे, right? So for that, first we are defining a definition. For first we are defining a mapping. If X is a linear space over a field K, right? And we have a mapping P from X to R, right? Real space mapping is from X to R and X is a linear space. Then this mapping is said to be sublinear, functional on X, if this holds. P of X plus Y is less than equals to P of X plus P of Y for all xy. That is, the mapping is subadditive, not additive, subadditive. If subadditivity holds, and with respect to scalar, this holds scalar multiplication only if alpha is a real number and greater than equals to 0, right? So we call these properties as subadditive property and positive homogeneous, right? So if these two properties holds, then this mapping P is called a sublinear functional. Clear? Now after defining what is a sublinear functional, we are stating what is a Hahn-Banach theorem, right? The statement for real vector spaces, if the vector space is real. So if let X be a real vector space and P be a sublinear functional on X, right? एक X vector space है, then उसके ऊपर हमने एक P sublinear functional define किया. Further, let F be a linear functional which is defined on a subspace Z of X. Z जो है X का subspace है, right? And हमने functional define किया है F on Z. Clear? Which satisfies that fx is less than equals to px for all x belonging to z. यहाँ पे less than equals to का मतलब first मतलब क्या है कि partial ordering है. Now partial ordering जो है and real vector space है, right? Functional की जो value होती है, functional is from x to r and x to r जाएगा, that means जो fx and px की values आएंगी functional की, they would be real. तो यहाँ पे partial ordering का मतलब क्या है, less than equals to वाला ही. Clear? So what we have till now is X is a real vector space, P is a sublinear functional defined on X. Next हमने एक subspace लिया है Z of X, right? And F हमने एक functional define किया है जो कि Z पे defined है and satisfy करता है that F is less than equals to P. Then हम क्या कह रहे हैं? If these all properties holds, then F has a linear extension F tilde from Z to X satisfying this, right? So f की एक लीनियर एक्सटेंशन होगी एंड लीनियर एक्सटेंशन z की जगह कहाँ पे डिफाइन हो जाएगी, कंप्लीट x पे, एंड दैट वुड सैटिस्फाई दैट f टिल्डा इज लेस देन इक्वल्स टू p फॉर ऑल x, राइट? सो ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रिजर्व रह रही है एक्सटेंशन के टाइम पे भी जो एक्सटेंशन आएगी. दैट मीन्स कि f जो है f टिल्डा एक लीनियर फंक्शनल आ जाएगा s पे एंड x पे एंड सैटिस्फाइंग द above equation, that is f tilde is equals less than equals to px. and since extension है तो z के ऊपर दोनों फंक्शंस इक्वल होने चाहिए. स्टेटमेंट क्लियर है? नेक्स्ट, सो प्रूव करने के लिए हमें इसमें प्रूव करना क्या क्या है. फर्स्ट थिंग कि एक लीनियर एक्सटेंशन मिल जाएगी.
सेकेंड थिंग इज ये उसको इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगी, राइट. सो एंड एक्सटेंशन मिलेगी, दैट मीन्स एफ टिल्डा एफ के भी इक्वल होना चाहिए जेड पे, राइट. सो हम प्रूव क्या कर रहे हैं अभी, इसके लिए हम स्टेप्स यूज करेंगे 3-4. सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या ले रहे हैं, एक ई सेट ले रहे हैं, that is a set of all linear extensions g of f which satisfies the condition, right. So that means e हमने set क्या लिया है, all those linear extension of f which satisfies the condition gx is less than equals to px, ठीक है. for all x belonging to the domain of g. अब डोमेन कोई भी लीनियर फंक्शनल है, एक्सटेंशन है, तो उसकी डोमेन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है z ही हो, z से अलग भी हो सकती है. तो हमने वो सेट लिया है E, that is the set of all linear extension of f and satisfying this inequality that gx is less than equals to px for all x belonging to domain of g. अब हम प्रूव क्या करेंगे, हम इसमें जॉन्स लेमा लगाएंगे इस सेट के ऊपर एंड वी विल प्रूव कि इस सेट का एक मैक्सिमल एलिमेंट हमें मिल जाएगा. एंड मैक्सिमल एलिमेंट को हम क्या नाम देंगे, एफ टिल्डा, राइट. तो हम यह कह रहे हैं कि इस सेट का हमें एक मैक्सिमल एलिमेंट मिल जाएगा एंड मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा एफ टिल्डा, मतलब एक एक्सटेंशन मिल जाएगी एंड मैक्सिमल एलिमेंट जो मिलेगा हमें, देन उसकी बात प्रूव करेंगे कि उस एलिमेंट की जो डोमेन आ रही है वो पूरा स्पेस आ रही है. तो स्टेप्स क्लियर है. फर्स्ट हमने ये सेट लिया ई, देन इसके ऊपर हम अब जॉन्स लेमा अप्लाई करेंगे. जॉन्स लेमा अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा कि ई के पास एक मैक्सिमल एलिमेंट है, राइट. एंड मैक्सिमल एलिमेंट की जो डोमेन है वो अभी क्लियर नहीं है हमारे पास, तो हम इसको सिर्फ डोमेन ऑफ एफ टिल्डा ही लिखेंगे, राइट. तो जो एलिमेंट आया उसकी डोमेन पे. नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ये जो डोमेन ऑफ एफ टिल्डा आ रही है दिस इज नथिंग बट एक्स, राइट. सो ये प्रूव हो जाएगा कि लीनियर एक्सटेंशन हो रहा है पूरे स्पेस के ऊपर, राइट. सो फॉर दैट लेट अस स्टार्ट प्रूविंग. So E set हमने लिया था लीनियर एक्सटेंशंस का, that satisfies this property. Then Zons lemma के लिए first हमें क्या चाहिए था, नॉन एम्प्टी सेट having a partial ordering, right. Now clearly E जो है वो नॉन एम्प्टी है because F जो है that belongs to E. F तो उसकी लीनियर एक्सटेंशन है ही ना, F is always belonging to this. F is a linear extension of F and F satisfies this property because hypothesis में given है fx is less than equals to px for all x belonging to z, right. So therefore E is non-empty set. नाउ हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक पार्शियल ऑर्डरिंग डिफाइन करनी है. देन वी डिफाइन अ रिलेशन, देन उसको हम प्रूव करेंगे कि ये पार्शियल ऑर्डरिंग है. सो फर्स्ट वी आर डिफाइनिंग अ रिलेशन ऑन ई बाय g hat g is less than equals to h if and only if h is an extension of g. that means partial ordering g and h किस तरीके से डिफाइंड है, if h is an extension of g then we will write g is less than equals to h, right. एंड एक्सटेंशन होने का मतलब क्या है, डोमेन ऑफ G पे तो इक्वल होंगे एंड डोमेन ऑफ H इज सुपर स्पेस ऑफ D ऑफ G. ये क्लियर है एक्सटेंशन की डेफिनेशन, राइट. नाउ क्लियरली हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि पार्शियल ऑर्डरिंग है, बिकॉज पार्शियल ऑर्डरिंग के लिए हमें क्या चाहिए था, रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, राइट. उसको हम ऑलरेडी यहाँ पे इजीली प्रूव कर सकते हैं. then we will say that this set E with this relation E less than equals to is a partial ordered set, right. then हमारे पास अब क्या आ गया, जॉन्स लेमा में हमें क्या क्या चाहिए था, और एक चेन चाहिए थी. suppose that every chain suppose that a chain has a upper bound, right. so हमने एक चेन डिफाइन करनी है अब C. so let C be any chain in E. so if you remember हमने जो लास्ट 2 एग्जांपल्स किए थे जॉन्स लेमा की एप्लीकेशन के, ऑर्थोनॉर्मल सेट वाला एंड दिस हैमर्स बेसिस वाला, इसमें जो हमने नॉर्मल जो अपर बाउंड लिया था दैट वाज यूनियन ऑफ ऑल सबसेट्स ना दोनों केसेस में, राइट. एंड एवरी चेन हैज एन अपर बाउंड व्हिच इज यूनियन ऑफ ऑल एलिमेंट्स. तो सिमिलरली हम इस केस में लेके चल रहे हैं कि हमने एक मैपिंग डिफाइन की G टिल्डा which is from union of all G belonging to union of all DG, मतलब हर एक लीनियर एक्सटेंशन की डोमेन such that G जो है उस चेन में बिलोंग कर रहा है, राइट. सो दैट मीन्स चेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन का यूनियन ले लेंगे, देन ये अपर बाउंड प्रूव करेंगे हम इसको. सो हम इसको क्या ले रहे हैं, एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं G टिल्डा फ्रॉम दिस स्पेस टू R. नाउ क्योंकि G हैट जो है एक फंक्शनल है, सो टू R जाएगा. एंड डिफाइन कैसे कर रहे हैं, दैट G hat of x is equals to G of x for every x belonging to domain of G, राइट. क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स जो आ रहे हैं
वो डी ऑफ जी के आएंगे हर एक जी के करस्पॉन्डिंग। तो हमने डिफाइन किया है कि दैट जी हैट इज इक्वल्स टू जी फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू डी जी। क्लियर? नाउ अब फर्स्ट थिंग इज हमें इसको प्रूव करना है दैट दिस डी जी हैट क्या होगा, दैट इज दिस यूनियन, दिस इज अ वेक्टर स्पेस। हाउ? बिकॉज सी जो है एक चेन है एंड ये सारे के सारे डीजीज जो है नेस्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, राइट? सो देयरफॉर डिस्क्रीट अलजेब्रा में ये प्रॉपर्टी होती है दैट इफ सी इज अ चेन एंड दिस डीजीज आर nested then that union is a vector space, right? So we are using that property from here. So यहाँ से क्या आया कि g hat जो है एक लीनियर फंक्शनल है such that g is less than equals to g hat, right? Because g hat जो है g के इक्वल हो रहा है only on domain of g, that means extension वाली property satisfy कर रहा है, right? So therefore g is less than equals to g hat for all g belongings to c. Clear? So that means g hat is an upper bound for c. Clear है ये upper bound कैसे आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। Now, हमने अब यहाँ पे जो चेन ली थी C, that was any chain, arbitrary chain, right? So since C was arbitrary, so we have that every chain in E has an upper bound, right? So Zon's lemma की तीनों conditions satisfy हो गई, known empty set having a partial ordering and every chain has an upper bound. So therefore by Zon's lemma E has a maximal element and we denote it by say F tilde is the maximal element, right? So अब maximal element होने का मतलब क्या है? ई की डेफिनेशन क्या थी? ई में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे थे? वो सारे लीनियर एक्सटेंशन जो इस ऑर्डरिंग को, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे थे, राइट? सो दैट एन एफ टिल्डा जो है मैक्सिमल एलिमेंट है ई का, दैट मींस एफ टिल्डा जो है वो एक लीनियर एक्सटेंशन हो जाएगा एफ का, सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू डोमेन ऑफ एफ टिल्डा। एनी डाउट इन दिस? Next, what we are showing now is that this domain of f tilde is nothing but the whole space X, right? So if possible उसको prove करने के लिए what we are taking is let this is not equals to X, right? Domain of f tilde is not equals to X, that would mean एक element exist कर जाएगा X minus d f tilde में, right? And जो कि non zero होगा because zero जो है domain of f tilde में belong कर रहा है, ये क्योंकि वेक्टर स्पेस बन रहा है, right? Z is a vector space. So that means एक एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाएगा y1 जो कि इसमें बिलोंग कर जाएगा x माइनस डी एफ टिल्डा में, राइट? सो उसको अज्यूम करके y1 हमने एक सेट बनाया दैट इज डोमेन ऑफ f टिल्डा यूनियन दिस y1, राइट? दैट मीन्स ये y सबस्पेस किसका, ये दिस इज द सबस्पेस ऑफ x, राइट? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स x के हैं एंड दिस इज स्पैन्ड बाय f टिल्डा एंड y1, राइट? दैट मीन्स हर एक अगर एलिमेंट हम लेंगे x y1 का, that can be expressed as y plus alpha y1, जहाँ पे y एलिमेंट किसका है, डोमेन ऑफ f टिल्डा का, and alpha is a scalar, right? So that means ये रिप्रेजेंटेशन जो है that would be unique, ये हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि that would be unique because अगर यूनिक नहीं ले रहे हैं that means दो रिप्रेजेंटेशन होल्ड कर जाएंगी, राइट? लेट दोज टू रिप्रेजेंटेशंस भी, एक है y plus alpha y1, एक है y नॉट प्लस बीटा y2। यहाँ पे y और y नॉट जो है डोमेन ऑफ f टिल्डा में बिलोंग कर रहे हैं एंड y1 तो इसमें था ही y1 सेट में, एंड अल्फा एंड बीटा आर रियल स्केलर्स, राइट? सो दैट वुड मीन्स y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा y नॉट alpha y1, right? And this is belonging, left hand side is belonging to domain of f tilde, right hand side is belonging to y, and these would be possible only when y minus y naught is equals to 0, right? And beta minus alpha भी 0 होना चाहिए because उनके बीच में कोई common element नहीं है, right? So therefore y is equals to y naught and alpha equals to beta, and then hence x is a unique representation. So हमने क्या किया अभी, डोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू एक्स था तो एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया, उस नॉन जीरो एलिमेंट से हमने एक स्पेस बनाया y1 which was domain of f tilde union the space generated by this y1, right? And since y1 जो स्पेस आ गया then हर एक y1 x जो है अगर y1 में होगा उसकी ये रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं and that representation would be unique. अब इससे क्या होगा, we can define a mapping g1 from y1 to r by mapping किससे डिफाइन हो रही है,
g1 of y plus alpha y1, that means x था y1 में, right? g1 of x is equals to f tilde of y plus alpha c. यहाँ that means ये जो फर्स्ट एलिमेंट है y, ये तो f tilde पे चला गया, एंड जो सेकंड एलिमेंट था इसका अल्फा y1, उसमें कोफिशिएंट सेम रह गया, एंड g जो y1 एलिमेंट है वो y1 किसी c के ऊपर भेज रहा है, एंड c इज एनी रियल कांस्टेंट, राइट? बिकॉज g एक लीनियर फंक्शन बनेगा. Then clearly g is a linear functional on y1. If we are defining this, we can prove this that this is a linear functional. Furthermore, अगर अल्फा 0 हो जाता है, then what we would have is g1 of y is equals to f tilde of y, right? That means g1 इसकी proper extension हो जाएगी, right? f tilde की, and proper extension होने का मतलब क्या है कि domain of f tilde would be contained in domain of g1 and equal नहीं होगी, right? एंड g1 f tilde के इक्वल हो जाएगा ऑन डोमेन ऑफ f tilde. सो यहाँ तक हमारे पास क्या आया कि डोमेन ऑफ f tilde हमारे पास एक अलग सेट में कंटेन हो जाएगी डोमेन ऑफ g1 में, एंड g1 और f जो है इक्वल है. दैट मीन्स इस f tilde की हमारे पास एक एक्सटेंशन आ जाएगी, प्रॉपर एक्सटेंशन, राइट? नेक्स्ट हम क्या शो करेंगे कि जो g1 है वो भी E में बिलोंग करता है, राइट? जैसे ही हमने ये शो कर दिया कि g1 जो है E में बिलोंग करता है, देन हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, बिकॉज g1 जो है f tilde की वो थी, एक्सटेंशन थी, राइट? एंड हम प्रूव कर चुके हैं f tilde जो है वो मैक्सिमल एलिमेंट है E का, राइट? तो उससे बड़ी एक्सटेंशन कोई नहीं आ सकती, सो दैट वुड बी अ कॉन्ट्रडिक्शन. स्टेप्स क्लियर है? एनी डाउट? So now what we are proving is that g1 is contained in E. That means g1 is less than equals to px. हमें सिर्फ प्रूव करना है क्योंकि हम प्रॉपर एक्सटेंशन तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, राइट? सो gx is less than g1 is less than equals to p हमें प्रूव करना है. So for that let y and z belonging be the two elements in df tilde, right? That means f tilde of y minus f tilde of z. Now f tilde linear था तो that can be written as f tilde of y minus z, right? And this f tilde of some element f tilde of x was less than equals to px for all x belongings to domain of f, and y and z जो है domain of f tilde में belong करते हैं, and this was a vector space, हम already prove कर चुके हैं, so therefore y minus z भी इसमें belong करेगा, and therefore this would be less than equals to p times p of y minus z, and p of y minus z में plus minus y1 लिख सकते हैं, right? So therefore that would p, since एक sublinear map था तो सब additive होगा, so therefore this would be less than equals to p of y plus y1 plus p of minus y1 minus z1, right? So यहाँ से इसकी वैल्यू, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, p minus of this is minus f of z is less than equals to p time p of y1 plus y1 minus f tilde of y, जहाँ पे y1 फिक्स था, right? Now that means अगर हम इसका सुप्रीमम लेंगे तो सुप्रीमम भी लेस देन इक्वल्स टू होगा, राइट? बिकॉज y जो है सुप्रीमम हम किसके ऊपर ले रहे हैं, ऑल दोज z बिलोंगिंग्स टू df tilde, राइट? एंड df tilde में एलिमेंट्स कौन से थे, सिर्फ हमारे y एंड z, ठीक है? एंड जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इसमें कहीं भी y नहीं आ रहा है, राइट? तो सुप्रीमम सिर्फ लेंगे जब z के ऊपर आएगा, राइट? सो दिस वुड बी लेस देन इक्वल्स टू दिस, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई z की टर्म नहीं है, सो दैट वुड बी सिमिलर, राइट? तो सुप्रीमम ले सकते हैं, तो सुप्रीमम के बाद ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, and that would mean this supremum would be less than equals to infimum of this, because हर एक एलिमेंट y के लिए छोटा है, so that means उनके infimum से भी छोटा होगा for y belongings to df tilde, right? So यहाँ से क्या आया, some m naught is less than equals to m1. m naught क्या है, सुप्रीमम वाली क्वांटिटी, एंड m1 क्या है, infimum वाली क्वांटिटी, right? Therefore and for some c with m, अगर हमारे पास ये इक्वेशन होल्ड करती है that m naught is less than equals to c is less than equals to m1, so that would imply कि दोनों इक्वालिटीज होल्ड करनी चाहिए, राइट? m naught c से भी लेस देन होगा एंड c से m1 से बड़ा भी होगा. दैट मीन्स हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यूजिंग दिस m naught और m1 की वैल्यूज, दैट दिस माइनस p वाली टर्म जो है, सुप्रीमम वाली जो टर्म थी उस पर सुप्रीमम हटा देंगे, so that would be less than equals to c for every z, बिकॉज सुप्रीमम लेस देन था तो हर टर्म भी लेस देन होगी, एंड यहाँ पे इनफीमम जो है, दिस राइट हैंड साइड में इनफीमम वाली टर्म थी, राइट? c इज लेस देन इक्वल्स टू m1, राइट? सो इनफीमम से छोटा है, दैट मीन्स हर एक टर्म से भी छोटा होगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या केसेस आएंगे, फर्स्ट केसेस अगर अल्फा 0 हो जाता है,
इफ अल्फा नॉन जीरो हो जाता है, एंड इफ नॉन जीरो हो जाएगा तो ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो। तो हम यहाँ से प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, हमें प्रूफ सिर्फ ये करना है कि g1x वुड बी लेस देन इक्वल्स टू px फॉर एवरी x, राइट। सो अगर अल्फा जीरो है तो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या थी, y प्लस अल्फा y1, राइट, क्योंकि x जो है हमने स्पेस में लिया था एलिमेंट इन y1 स्पेस में, राइट। सो अगर अल्फा जीरो हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू y होगा। सो देयरफॉर g1 ऑफ x इज इक्वल्स टू f टिल्डा ऑफ y है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। g1 ऑफ x इज इक्वल्स टू f टिल्डा ऑफ y, f की प्रॉपर एक्सटेंशन है if अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। Then therefore g1 of x is equals to f tilde of y, and f tilde of y is always less than equals to px hypothesis. So therefore यहाँ से क्या आ गया, g1 is less than equals to px for every x belonging to domain of g1. ये कब था, जब अल्फा लेस इक्वल्स टू जीरो था। सिमिलरली अगर अल्फा लेस देन जीरो होगा देन हम एक एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं z which is equals to y by alpha, एंड इस z को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन 2 में, राइट। सो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने से क्या आएगा, z की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने y बाय अल्फा, राइट। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा नेगेटिव था तो माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, राइट। सो देयरफॉर दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस, सो अल्फा टाइम्स p ऑफ दिस एज इट इज, प्लस यहाँ से f जो है f टिल्डा लीनियर था, सो देयरफॉर यहाँ से बाय अल्फा बाहर आएगा एंड वहां से माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया, सो दैट वुड बी प्लस f टिल्डा ऑफ y व्हिच इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाय c, राइट। नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ g1x, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रूव क्या करना है, g1x इज लेस देन इक्वल्स टू px, राइट। सो g1x को हमने निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू y प्लस अल्फा y1, right, and that is equals to by definition of g1 f tilde of y plus alpha of c, clear है। now alpha of c जो है यहाँ से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 से, right, alpha minus alpha c was greater than equals to this, so that means alpha c would be less than equals to this, right, f tilde y plus करके। so therefore इसमें जब p है, p was a sublinear functional, right, so इसमें that means this can be written as this, because minus alpha जो है वो पॉजिटिव नंबर था तो p जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू माइनस अल्फा, राइट। सो उससे हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल्स टू px, दैट मींस g1x इज लेस देन इक्वल्स टू px फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू डोमेन ऑफ g1, राइट। सिमिलरली हम अल्फा ग्रेटर देन जीरो के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो दैट मीन्स हर एक केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, g1x is less than equals to px for every x belonging to domain of g1, that means g1 e में आ गया क्योंकि extension तो था ही, right, proper, and that implies g1 is a proper extension of f tilde, which would be contradiction because f tilde was a maximal element of e, right, so उससे बड़ी कोई extension नहीं आ सकती हमारे पास, so here therefore our assumption was wrong and hence d of f tilde is equals to x। अब इसमें जो doubts हो वो पूछो। No doubts? If this is clear, the Handmann theorem for real spaces, then we have the next Handmann theorem, which is generalized. That means for general spaces. So X be a real or complex vector space, right? रियल के लिए क्या था, सिर्फ रियल वेक्टर स्पेस था, यहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी वेक्टर स्पेस हो सकता है। एंड P is a real valued functional on X which is sub-additive, right? So that means P of X plus Y is less than equals to this. अब हम इसको सब लीनियर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सब लीनियर की डेफिनेशन में हमने क्या लिया था, रियल एलिमेंट्स लिए थे, राइट। सब लीनियर P was mapping from X to R, अब यहाँ पे फील्ड जो है वो R नहीं है, राइट। सो देयरफॉर हम उसको सब लीनियर ना कह के हम इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं एग्जैक्टली। let P be a real valued functional on X which is sub-additive, right? So sub-additive, that means P of X plus Y is less than equals to Px plus Py, and for every scalar alpha it satisfies P of alpha x is equals to modulus of alpha into P of X,
राइट। सो अगर इसको रियल में लेके जाएंगे सो दैट वुड होल्ड, क्योंकि सब एडिटिवनेस तो होल्ड कर रही है, एंड रियल में मॉड्यूलस ऑफ अल्फा वुड बी इक्वल्स टू अल्फा इफ ओनली इफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ से हम फर्दर मोर क्या कह रहे हैं, एंड एफ बी अ लीनियर फंक्शनल विच इज डिफाइंड ऑन द सबस्पेस z ऑफ x, राइट। सेम हाइपोथेसिस है कि एक फंक्शनल लिया है हमने जो सबस्पेस के ऊपर डिफाइंड है एंड सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी। अब उसमें एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू पी एक्स था, तो हम इसमें अब मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स कर रहे हैं, क्योंकि एफ एक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एंड कॉम्प्लेक्स के केस में हम कंपेयर नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, उनके मॉड्यूलस को कंपेयर करते हैं, राइट। सो देयरफॉर हमने क्या लिया है कि f एक लीनियर फंक्शनल है that satisfies modulus of fx is less than equals to px for every x belonging to z, and z क्या है, सबस्पेस ऑफ x। देन हम क्या कह रहे हैं, f के पास एक लीनियर एक्सटेंशन होल्ड कर जाएगी from z to x which would satisfy this, right। so first claim हम दो पार्ट्स में इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट वुड बी अगर x एक रियल वेक्टर स्पेस है, रियल वेक्टर स्पेस है तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, राइट। सो उसमें ज्यादा प्रूव करने की टेंशन नहीं होगी। देन हमें कॉम्प्लेक्स में प्रूव करना है। अब कॉम्प्लेक्स में प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ एक ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कोई एक z एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स स्पेस में, देन उसको हम u प्लस आयोटा भी लिखते हैं, राइट। एंड जहाँ पे ये u और v रियल स्पेसेस है, राइट। सो हम इसको इन दोनों स्पेसेस के ऊपर प्रूव करेंगे, एंड देन प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शनल है ये z के ऊपर भी होल्ड कर जाएगा, राइट। सो रियल स्पेसेस को यूज करेंगे हम कॉम्प्लेक्स प्रूव करने के लिए। सो फर्स्ट केस इज अगर x एक रियल वेक्टर स्पेस है, देन मॉड्यूलस ऑफ fx वुड बी नथिंग बट fx, राइट, बिकॉज़ मॉड्यूलस ऑफ fx कॉम्प्लेक्स में क्या डिनोट करता था, इसकी लेंथ। सो दिस वुड बी fx is less than equals to px for every z। so hence real valued functions के लिए हार्मोनिक थ्योरम जब यूज करेंगे तो there would be an extension such that this holds, right। now f tilde of x जो है that is equals to f tilde of minus x भी होता है, right, and this holds equation 1 holds for every x, तो minus x के लिए भी hold करेगी। so therefore that is f tilde of minus x would be less than equals to p times minus of x, and p क्या कर रहा था, मल्टी प्रॉपर्टी ए से मॉड्यूलस बाहर लेके आ रहा था कांस्टेंट का, राइट। सो देयरफॉर माइनस वन ऑफ एक्स आ जाएगा बाहर, एंड पी ऑफ एक्स एज इट इज, एंड माइनस वन का मॉड्यूलस इज वन, सो देयरफॉर दिस इज पी एक्स। दैट मीन्स एफ टिल्डा ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस एफ टिल्डा है, माइनस एफ टिल्डा इज ऑल इज लेस देन इक्वल्स टू पी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, राइट। सो फ्रॉम 1 and 2 f tilde भी लेस देन p है एंड माइनस f tilde भी लेस देन p है, दैट मींस मॉड्यूलस होल्ड कर रहा है, राइट। सो रियल वेक्टर स्पेसेस के लिए हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हम प्रूव करना है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए। सो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए अगर हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ले रहे हैं तो उसका सबस्पेस भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा, राइट। नाउ what we are saying is that means f is a complex valued function, right। so that means f को हम लिख सकते हैं f1 plus iota f2 की टर्म्स में where x belongs to z, right, because f जो हमने क्या लिया था, एक linear functional defined on z, and z is a complex valued vector function, right। so therefore f can be written as fx is equals to f1 plus iota f2 where f1 and f2 जो है वो real valued function है, एंड सिंस f लीनियर है तो f1 एंड f2 जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड सिंस f लीनियर है तो f1 एंड f2 जो है वो दोनों के दोनों लीनियर फंक्शंस होंगे ऑन zr, एंड zr क्या है, रियल वेक्टर स्पेस ऑफ z, ठीक है। zr इज द रियल वेक्टर स्पेस z, राइट। जब हम रियल स्पेस पे कंसीडर करेंगे तो f1 एंड f2 वहाँ पे लीनियर फंक्शन हो जाएंगे बिकॉज f1 एंड f2 दोनों के दोनों रियल वैल्यूड हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या यूज कर रहे हैं कि सिंस द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट एक्सीड द एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट, क्योंकि f1x जो है दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस, सो देयरफॉर f1 ऑफ x वुड बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ fx, राइट, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ fx में क्या आएगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे मॉड्यूलस, राइट, एंड कोई भी रियल पार्ट लेंगे या इमेजिनरी पार्ट लेंगे दैट कैंट एक्सीड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। And this absolute value modulus of fx, this is already given that this is less than equals to px for all x belonging to zr, right। real vector अगर हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं because f1 की जो डोमेन है, f1 की जो डोमेन है this is for all x belonging to z, and f1x जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो these are real values, so therefore we are considering it for x belonging to zr।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, f1x इज लेस देन इक्वल्स टू px फॉर एवरी x इन रियल वेक्टर स्पेस z, राइट. सो दैट मीन्स f1 जो है एक लीनियर फंक्शनल था, राइट, एंड f1 जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी को. सो हैन-बनाफ थ्योरम f1 फंक्शनल के ऊपर लग जाएगी. So there would exist a linear extension f1 tilde of f1, ठीक है, एंड zr था तो zr से xr पे एग्जिस्ट करेगी such that f1 tilde is less than equals to px, right. So real space zr से real space x के ऊपर हमने एक extension define कर दी f1 की एंड उसको नाम दिया है f tilde. अभी एक्सटेंशन जो है कैसे देखो होल्ड कैसे कर रही है, दैट fx को हम क्या लिख सकते हैं, f1 प्लस आयोटा f2, राइट. सो इसमें अगर आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी इक्वल्स टू आयोटा f1 एंड आयोटा इनटू आयोटा -1 हो जाएगा, सो माइनस f2. f जो है लीनियर है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें होल्ड कर रही थी, दैट मींस आयोटा अंदर आ जाएगा, तो f ऑफ आयोटा x इज इक्वल्स टू आयोटा f1 माइनस f2, राइट. तो यहाँ से क्या आएगा, f1 ऑफ आयोटा x plus iota times f2 of x is equals to this, right, because f of iota x की अगर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, f of iota x from this equation क्या आएगा, f1 of iota x plus iota f2 of iota x, right. So this is nothing but f of iota x and right hand side as it is, right. So दोनों sides को compare करेंगे, so what we would have is f2x is equals to minus f1 of iota x, clearly for all x belonging to z, राइट. इक्वेशन 5 तक क्लियर है. नेक्स्ट व्हाट वी आर सेइंग इज, अब f2 को हमने f1 की फॉर्म में डिफाइन कर दिया एंड f1 की हमने लीनियर एक्सटेंशन ले आए थे, राइट. सो हम अब एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं f टिल्डा फ्रॉम x टू c, राइट. हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं f टिल्डा फ्रॉम x टू c एंड हम ये प्रूव करेंगे कि ये f टिल्डा जो है ये एक्सटेंशन है f की, राइट. सो f टिल्डा को हमने डिफाइन कैसे किया है, दैट इज इक्वल्स टू f टिल्डा f1 ऑफ का टिल्डा माइनस आयोटा f1 ऑफ दिस, राइट. सो f2 की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की क्योंकि सिर्फ f2 हमारा ये आया था माइनस f1, सो इसकी अगर एक्सटेंशन लेते हैं f2 की दैट वुड बी माइनस f1 ऑफ आयोटा x1, राइट. सो देयरफॉर हमने fx को डिफाइन किया f1 माइनस आयोटा f1 ऑफ आयोटा x. देन वी विल प्रूव कि ये अगर z पे कंसीडर कर रहे हैं तो ये इक्वल है ही, राइट, बिकॉज z पे f1 की वैल्यू क्या है f एंड इसकी वैल्यू क्या है f2, राइट. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू f. सो देयरफॉर z पे तो ये होल्ड कर रहे हैं, दैट मींस f टिल्डा जो है एक्सटेंशन आ गई f की फ्रॉम z टू x, राइट. तो एक्सटेंशन हमने प्रूव कर दिया. अब हमें प्रूव क्या करना है कि एक्चुअल में ये लीनियर फंक्शनल भी है, राइट. सो लीनियर प्रूव करने के लिए व्हाट विल कंसीडर इज f tilde of x plus y and we will prove that this is equals to f tilde of x plus f tilde of y, right. so यहाँ से f tilde of x plus y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. f tilde of x plus y अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे that would be equals to f1 of x plus y minus iota f1 of iota x plus y, right. so just इनमें f1 की प्रॉपर्टीज यूज करने हैं because f1 लीनियर था, so we would have the proof. नेक्स्ट हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करनी है, राइट. लीनियर फंक्शनल प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे साथ में क्यों नहीं किया, बिकॉज वो फिर बहुत ज्यादा हॉचपॉच हो जाता, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है उसमें प्रूव करने में, तो इसीलिए हमने अलग अलग प्रूव कर रहे हैं. अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कंसीडर नहीं कर रहे डायरेक्ट. सो देयरफॉर यहाँ पे अगर हम एफ टिल्डा कंसीडर कर रहे हैं, एफ टिल्डा ऑफ एफ एक्स अल्फा एक्स, दैट वुड बी अल्फा जो है अब स्केलर वैल्यू है इन कॉम्प्लेक्स फील्ड, तो उसको हम a प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, राइट. so that would be ax plus iota bx and then f tilde की definition लगा के we would have this is equals to scalar multiplication wholes, right. so that means f tilde जो है एक linear function आ जाएगा on complex vector space. next हमें अगर सिर्फ यही शो करना बच गया that ये इक्वेशन को satisfy करेगा that modulus of f tilde x is less than equals to px. now उसके लिए first condition is if x is 0 then f tilde of x is 0 and px is 0 by the definition of px, right. px क्या था, मॉडुलस ऑफ अल्फा x को बाहर लेके आ रहा था, राइट. सो 0 इंटू x कंसीडर करेंगे एंड f जो है लीनियर है फंक्शन, तो वो 0 पे 0 वैल्यू देगा एंड दिस इज px जो है वो भी 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट. सो इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन द इक्वेशन ये होल्ड कर रही है. सो अगर हम लेके चल रहे हैं, अगर एक नॉन जीरो x है जो कि आर्बिट्री है,
such that f tilde of x वैल्यू 0 नहीं दे रहा है, राइट. सो हम देन पॉलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ये f tilde ऑफ x जो है ये कॉम्प्लेक्स फील्ड में बिलोंग कर रहा है, राइट. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f tilde ऑफ x कैन बी रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ f इनटू e आयटा थीटा, राइट. कोई भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z तो उसको हम लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में. सो मॉड z इनटू e टू द पावर आयटा थीटा लिखते हैं उसको, राइट. सो सिमिलरली उसको यूज करेंगे यहाँ पे z इज इक्वल्स टू f tilde x के लिए. सो वी वुड हैव इज दिस. सो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ f x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, f tilde into e to the power minus iota theta, and f tilde जो है एक लीनियर है फंक्शनल. सो ये कांस्टेंट वैल्यू जो e to the power iota theta है इसको अंदर ले लेगा स्केलर को. So therefore that would be equals to this. Now f tilde of e to the power minus iota theta x, ये जो वैल्यू है e to the power minus iota theta x ये रियल वैल्यू है, right. So therefore that would be equals to f1 of this, right, because f1 जो था वो रियल था, राइट. तो क्लियर है, यहाँ से f tilde of x is equals to f1 of this आ गया. So what we have is and this is right, modulus of fx is equals to this, and this f1 जो है एक लीनियर फंक्शन था, लीनियर एक्सटेंशन जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था. हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं that f1 is less than equal f1 tilde is less than equals to px, right. So यहाँ से क्या आ गया फाइनली, that this is less than equals to p, ये ऑलरेडी डिफाइंड है. So therefore modulus of f tilde is less than equals to p अगर x नॉन जीरो है and x जीरो है तो इक्वल है, राइट. सो ये वाली जो कंडीशन है ये भी होल्ड कर रही है, एंड देयरफॉर f tilde जो है इसकी एक लीनियर एक्सटेंशन डिफाइन हो गई. कोई डाउट है तो इसमें पूछो. नो डाउट और एवरीथिंग इज डाउट. So I'm considering it is clear. So with this section is also complete, section 4.2. So next we are left with, let us say, Zorn's lemma. Section 4.1 we have already completed. Hand-Banach theorem we did right now. So section 4.2 is also complete. Then we have taken the Hand-Banach theorem for generalized function. We have already done this too. So section 4.3 first theorem is completed. Then is the Hand-Banach theorem for norm spaces, right? And we'll do that in next, I guess, next section, or we can do it right now. So let us consider कि इसमें हो गया रहा है कि if f is a bounded linear functional on subspace z of a norm space x. So अब इसमें subspace किस चीज का है, norm space का. पहले हमने real consider किया, then general space consider किया, real या complex, then अब हम norm space consider कर रहे हैं. Then there exists a bounded linear functional on an x which is an extension of f and has the same norm, right. यहाँ पे f tilde of x का norm क्या है, supremum of modulus of fx f tilde x, and modulus of f का norm क्या है, supremum over z, right. So domain change हो रही है now. So if अगर z is equals to 0 subspace है, then f is equals to 0 क्योंकि 0 subspace के ऊपर 0 ही है, then extension is also 0, right. So हम लेके चल रहे हैं अगर z non zero है, right. Then इसके ऊपर हमें क्या करना है, हमें यूज करनी है Hand-Banach theorem. जनरलाइज भी यूज कर सकते हैं, रियल भी यूज कर सकते हैं, राइट. तो उसके लिए हमें चाहिएगा p, क्योंकि इसमें हमें p डिफाइन नहीं किया हुआ कहीं भी, राइट. सो हमें एक p डिफाइन करना पड़ेगा. सो उसके लिए व्हाट वी से इज
that this modulus of fx is less than equals to z. ये कैसे आया? By the definition of f, norm of f. Norm of f की definition क्या थी? This is equals to this. इस definition की जगह हम alter definition भी use कर सकते हैं, that this is upon this when x is non-zero, right? So यहाँ से modulus of fx जो आएगा that would be less than equals to norm of f into norm of x, right? So इसको हम define कर रहे हैं of px. So px हमें prove करना था कि जब हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के लिए यूज कर रहे थे, सो हमें एक p फंक्शन चाहिए था सच दैट दिस होल्ड्स, राइट? मॉड्यूलस ऑफ f इज लेस देन इक्वल्स टू p, एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ f इज लेस देन इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी. सो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वांटिटी को पूरे को ही p का नाम दे रहे हैं. देन हम प्रूव करेंगे कि ये जो p है ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? कि सब एडिटिव है. सब एडिटिव होने का मतलब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हो जाएगा नॉर्म केसेस में, राइट? So norm cases अगर इसमें triangular inequality देखते हैं तो p of x plus y that would be norm of f as it is रहेगा into norm of x plus y आ जाएगा, and triangular inequality इसमें लगाएंगे so that would be nothing but norm of x less than equals to norm of x plus norm of y, right? So यहाँ से triangular inequality prove हो गई. and अगर p of alpha x consider करेंगे that would be norm of alpha x. norm of alpha x अगर निकाल रहे हैं, alpha scalar है तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ अल्फा बाहर आएगा, राइट? सो दैट वुड बी नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ अल्फा px. तो p जो है यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? सो देयरफॉर अब हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम ये थ्योरम 4.3.1 जो थी हमारी जनरल हैनमनाक थ्योरम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सो उससे अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि p सच दैट दिस होल्ड्स, एंड p जो है वो दोनों सबलीनियर फंक्शंस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. सो देयरफॉर बाय जनरल हैनमनाक थ्योरम हमारे पास एक लीनियर फंक्शन आ जाएगा f tilde on x which is extension and would satisfy this property, right? That is modulus of f tilde would be less than equals to px, and px की वैल्यू क्या थी? norm of fz into norm of x, right? Now if this holds then हम सुप्रीमम ले सकते हैं, taking supremum over all x belonging to x of norm 1. तो यहाँ से सुप्रीमम जब लेंगे, सुप्रीमम वाली जो क्वांटिटी है देन ये सिर्फ नॉर्म ऑफ x बन जाएगा क्योंकि हम हर एक x के ऊपर सुप्रीमम ले रहे हैं, राइट? तो ये वाली डेफिनेशन बन जाएगी supremum of modulus of fx for every x belonging to x that would be equals to norm of fx f tilde x, right? So using this definition we would have is norm of f tilde x is equals to supremum of this, and इसका supremum जब हम ले रहे हैं that would be less than equals to norm of fz, right? Because norm of x को हम 1 लेके चल रहे हैं, right? So यहाँ से हम क्या प्रूव किया कि that norm of f tilde with x, right? norm इसमें x पे निकालेंगे क्योंकि इसकी डोमेन x आ रही है, is less than equals to norm of f, and f की जो डोमेन है वो z है, right? So that means ये extension जो है यहाँ पे अंडर द एक्सटेंशन f tilde जो है एक्सटेंशन थी, राइट? एंड एक्सटेंशन का जो नॉर्म है वो कम नहीं हो सकता, right? So therefore modulus of f जो वाली प्रॉपर्टी है norm cannot decrease, right? So therefore modulus of f equal to f आ जाएगा क्योंकि जो रिवर्स इनइक्वालिटी होगी वो गिवन होगी using the fact that ये extension है, right? So therefore we have that this equality holds and the theorem is proved. Clear है ये?